اوکے نیکسٹ اسپیکر از اسد اللہ فرام سندھ. اور یہ اپنی آؤٹ لائن جو ہے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. اسد اللہ اٹس اوور ٹو یو ناؤ. جی ہیلو السلام علیکم گائز. وعلیکم السلام. میرا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے چینجنگ ورلڈ آرڈر اور پاکستان فارن پالیسی میں. The world is moving towards transformation in world order. This emerging change has triggered certain foreign policy challenges for Pakistan. However, pragmatic policy options need to be applied to sail through changing apparatus. ساری جو اس کی اپروچ ہے ایسے کی وہ اس میں کیا کیا چینجز ہیں ایمرجنگ گلوبل ورلڈ آرڈر میں، اور بعد میں کہ چیلنجز کون کون سی ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کو، چیلنجز کون کون سی ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کو، اور فائنلی پاکستان کے پاس پالیسی آپشنز کیا ہیں. سب سے پہلے میں ورلڈ آرڈر کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا. سر تھوڑا اوپر کر دیجیے گا. کہ ورلڈ آرڈر ہوتا کیا ہے. ورلڈ آرڈر از اے پیٹرن وچ World order is a patron which govern the relationships of countries. ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک رولز ہوتے ہیں جو کنٹریز کے آپس میں ریلیشن شپ کو گورن کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ کیسے ہوں گی. اٹ از ارینجمنٹ اینڈ پوزیشن آف کنٹری ان دا گلوبل پاور ایکویشن. یہ ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے، کنٹریز کی پوزیشن ہوتی ہے کہ گلوبل جو پاور ایکویشن ہے اس کی کیسے ارینجمنٹ ہوگی، اسے ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. اور تیسری پوائنٹ ہے چینجز ان ایمرجنگ ورلڈ آرڈر. اس میں نمبر اے ہے کہ شفٹنگ سینٹرز آف پاور فرام یونیپولرٹی ٹو ملٹی لیٹرلزم. پہلے یونیپولر ورلڈ تھی 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ گئی، اور بعد میں ایک ہی سپر پاور رہا یونائٹڈ اسٹیٹس. ابھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ابھی ہمیں ایمرجنس آف چائنا بھی نظر آ رہا ہے، ابھی ہمیں ریسرجنس آف رشیا بھی نظر آ رہا ہے، اور باقی کافی کنٹریز ہیں جیسے انڈیا، وہ بھی اکنامکلی ساؤنڈ ہوتے نظر آ رہا ہے. اس میں دوسری چینج جو ہمیں نظر آئی ہے وہ ہے ریوائول آف کولڈ وار. کولڈ وار والی سچویشن ہے جسے کولڈ وار 2.0 بھی کہا جا سکتا ہے. اس کا ایگزامپل ہے کہ یو ایس ورسز چائنا کی جو کمپٹیشن ہے انڈو پیسفک میں. تو یو ایس نے کافی پیکس اور ٹریٹیز بھی الائنسز بھی بنا ہے، جیسے آکوس ہے، کوڈ وغیرہ ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. تو یہ پھر وہی چیز ریوائول ہو رہی ہے جیسے سوویت یونین اور یو ایس اے کی گولڈ وار میں پاس میں ہم نے دیکھی کہ سیٹو سینٹو وغیرہ. پوائنٹس یہ پولیٹیسائزیشن آف برٹن ووڈس انسٹیٹیوشنز. ہمیں جو دوسری نظر آ رہی ہے کہ پولیٹیسائزیشن ہے، چاہے وہ پھر ان کے پیچھے نیشنل انٹرسٹ ہیں کنٹریز کے، وہ ان انسٹیٹیوٹ کو یوز کرتے ہیں اور پولیٹیسائز کرتے ہیں. اس میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل سے پیش کیا ہے کہ marginalization of United Nations and other institutions provided to powerful global actors to impose their will on weak and small state. یہ ایک آرٹیکل تھا ٹرانسفارمیشن آف ورلڈ آرڈر مونس ایمر 2019. تو جو ورلڈ آرڈر میں ایک چیز ہے کہ برٹن ووڈس انسٹیٹیوٹ جیسے آئی ایم ایف وغیرہ، آپ پاکستان کو دیکھ لیں کہ آپ کو ایسے آئی ایم ایف بیل آؤٹ نہیں ملے گا. یہاں تو آپ کو پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ کریں، کنڈیشنز بہت ہوتی ہیں کیونکہ ان کے بھی انٹرسٹ ہیں، اور یہ سارا جو سسٹم ہے پولیٹیسائز ہو گیا ہے. ریٹیٹنگ آف ڈیموکریسی اینڈ رائز آف اتھارٹیرین ہمیں نظر آ رہی ہے. کبھی ہمیں ہیومن رائٹس ابیوز نظر آتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز میں بھی،
جیسے کشمیر میں، جیسے فلسطین میں میڈیا سینسرشپ نظر آ رہی ہے، جیسے ایون جو بہت بڑا کنٹری ہے ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوتا ہے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، اور پھر اپوزیشن جو ہوتی ہے ڈائسینٹ ان کو بھی ایسے نہیں دیکھا جاتا ڈیموکریٹکلی. جیسے چائنا انسٹیٹیوشنز ہیں جو بھی بریٹن ووڈز میں کرٹیسزم برداشت نہیں کرتا اپنے اوپر، تو یہ ڈیموکریٹک جو نارمس ہے وہ ریٹریٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اتھارٹیرینزم بڑھتی جا رہی ہے. شفٹنگ پیراڈائم آف وار ہم نے دیکھا، پہلے ہوتا تھا کہ کنونشنل مینز پراکسیز کے ذریعے یوز ہوتی تھی، ابھی جو ہے پراکسیز بھی یوز ہوتی ہیں کنونشنل مینز سے، لیکن نان کنونشنل مینز بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے ریجیم چینج ہم نے دیکھا، ٹیکنالوجیکل ہیکنگ آف الیکشنز ہم نے دیکھا، جو الزام لگا تھا رشیا پہ فرانس کی میکرون والی الیکشن میں کہ انہوں نے ہیک کیے. کبھی ہم نے انکریزنگ رول آف پراکسیز دیکھتے ہیں، جیسے مڈل ایسٹ میں ایران اور سعودی عرب کی rivalry ہے تو وہ پراکسیز یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل لبنان میں، تو وہ نان کنونشنل سے نان کنونشنل کی طرف ہم جا رہے ہیں وار میں، ہائبرڈ وار کی صورت میں. ہماری جو فارن ریلیشنز کی اورینٹیشن ہے وہ کچھ چینج ہو گئی ہے. پہلے تو بلاک ہوتے تھے، ابھی ہم اکنامی اسٹرینتھ اور اکنامک جو ہے بینیفٹس دینے کے لحاظ سے ہم کنٹریز کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا ایک بڑا پروجیکٹ BRI ہے، پھر BBB بلڈ بیک بیٹر ہے امریکہ کا، اور برٹن کا یورپی یونین کا گلوبل گیٹ وے ہے. پاکستان کی فارن پالیسی چیلنجز 4A میں ایک پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ سوسیڈائڈ ٹریپ میں پاکستان ہے کہ وہ US اور چائنا کو کیسے ہینڈل کرے گا. اور چائنا بھی ہمارے اسٹریٹجیکلی ایلی ہے اور نائبرنگ کنٹریز ہے، اور ہمارے ہاں جو اکنامک پیکیج دیا انہوں نے CPEC، تو چائنا بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک ایسٹ ہے. لیکن ہم USA کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ ملٹری ایڈ پرووائڈ کرتا ہے، لارجسٹ کنٹری ہے ہمارے لیے جہاں پر ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو ہم ایک ٹریپ میں ہیں کہ اس کو بیلنس کیسے کریں، یہ بہت جو ہے کٹھن سچویشن ہے پاکستان کے لیے. ہیجمونک ٹینشنز آف انڈیا ڈیو ٹو انڈیا US نیکسس ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے ہیجمونک ایمبیشنز ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو سپورٹ کرنے میں بہت بڑا جو رول ہے US کا ہے، کیونکہ اس نے انڈو پیسفک جو اسٹریٹجی ہے اسے اپنے نیشنل انٹرسٹ حاصل کرنے اور چائنا کو کنٹین کرنا ہے. ہم نے دیکھا کہ بیکا پیکٹ انہوں نے سائن کیا، اور یہ چیزیں پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے گی، کیونکہ پاکستان کو تھریٹ جو ہے بیلنس کرنا ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجیکلی یا ویپن انڈیا کے ہاں ان کی اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی، تو ہمیں بھی یہ پرابلم آئے گا کہ ہم بھی اس بیلنس کو پرابلم کو تھریٹ کو بیلنس کریں، کہ ہم بھی انڈیا کے ساتھ جو چلتے جائیں، جیسے ڈیٹرنس پیدا ہو. سی میں ڈاؤن ورڈ اکنامک آؤٹ لک پاکستان کا ہے. پاکستان یہ ایک رپورٹ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، پاکستان is likely to grow at 4% in 2023 as compared to 5.6 in the previous year. تو یہ اکنامک آؤٹ لک نیچے جا رہا ہے، اس لیے کنٹریز ہمیں کافی جو ہے لفٹ نہیں کروائیں گے. فار ایگزامپل جیسے ہم نے دیکھا IMF کے پاس ہم گئے تو کافی ہم نے پیچیدگیاں دیکھی. تو یہ جو چیزیں ہیں ڈاؤن ورڈ اکنامک آؤٹ وہ گورن کرے گا ریلیشن جو ہے ہمارے وہ کافی کنٹری سے بہتر نہیں ہوں گے. دوسری طرف سعودی ایران رائیولری مڈل ایسٹ ہے، اور یہ دو مسلم کنٹریز مسلم بلاک میں بہت
अहमियत रखते हैं। सऊदी हमारे लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस कभी प्रोवाइड करता है, और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ ईरान भी हमारे लिए नेसेसरी है। और जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है, हमारे एनर्जी क्राइसिस को रिलीव करने के लिए, एलिविएट करने के लिए, तो हमें इनके सऊदी ईरान रिलेशंस और राइवलरी के बीच में दोनों कंट्रीज के साथ चलना है, लेकिन ये बहुत बड़ी चैलेंज होगी पाकिस्तान के लिए। इनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्ट है कि हमारे जो नाइबरिंग कंट्रीज है या मुस्लिम कंट्रीज है उनके साथ अच्छा ताल्लुक हो, लेकिन अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी नजर आ रही है, हमें थ्रेट नजर आ रहा है, टेररिज्म, जो पाकिस्तान को आगे चल के और अभी भी वो पाकिस्तान को तंग कर रहा है। इसमें जो बड़े में बड़ी चैलेंज है, अलायंस विद तालिबान could also strengthen relations with USA and other western countries, कि हम टेररिज्म और दूसरी जो चीजें हैं उनको खत्म करने के लिए तालिबान का साथ चाहिए। तो हम ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमें यूएसए और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं रहेंगे। इसमें इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एक रिपोर्ट है N3320, उसमें ये कहा गया कि alliances with Taliban could also strengthen relations with USA and other western countries। एफ जो है उसमें मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान कभी किसी ब्लॉक में चला जाता है, कभी किसी, अभी हमने देखा कि जैसे एब्सोल्युटली नॉट वाला नोशन चल रहा था, और काफी चीजें जो थी हम चाइना के ब्लॉक में काफी नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें दूसरे कंट्रीज के साथ भी चलना है। तो ये मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं कि पाकिस्तान इंटरनली थ्रू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खुद को जो है वो मजबूत करे। जैसे मूनिस एमर भी कहते हैं आर्टिकल में, नो कंट्री कैन डील विद एक्सटर्नल चैलेंजेस अनलेस इट इज एबल टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। तो अगर आपका हाउस अब ऑर्डर में नहीं होगा तो रिलेशन उस हिसाब से चलेंगे, वो जो दूसरे कंट्रीज हैं वो आपसे ज्यादा डिमांड कर देंगे। प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, नॉट रिएक्टिव हमें चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्डर में कोई भी चेंज आती है तो हम रिएक्ट करते हैं, ना कि प्रोएक्टिव है। जैसे ईरान की फॉरेन पॉलिसी देखें कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें प्रोएक्टिव नजर आते हैं। जैसे ईरान न्यूक्लियर डील है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को या यूएसए को सीधा बात के देता है कि हम ये करना चाहते हैं, ना कि अमेरिका को सुनने के लिए सुन के वो रिएक्ट करता है। हमें रीअलाइनमेंट विथ रशिया एंड चाइना मेंटेन करनी चाहिए, वाइल पॉजिटिव रिलेशंस विथ यूएसए। हमें इन तीनों कंट्रीज के साथ जो है साथ में चलना होगा। इसमें एक मैंने रिसर्च पेपर की या कोई रिपोर्ट की बात की है, पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एंड political realignment with China and Russia had helped the country diffuse hostile diplomatic posture of India। ये मोहम्मद आमिर राना सिक्योरिटी एनालिस्ट है, डायरेक्टर पिप्स, उसने कहा कि हम चाइना और रशिया के साथ रहें, लेकिन जरूरी है इसलिए कि हमारे यहाँ जो इंडियन हेजिमोनिक पोस्चर है उसको भी काउंटर करना है। डी पॉइंट है, नॉट टू बी अ सोल पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। हमें किसी भी ब्लॉक, कोई भी हो, यूएस का हो, चाइना का हो, सोल पार्ट नहीं बनना चाहिए। फिर इसमें इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडी 2019 में एक रिपोर्ट है, सेमिनार था, पाकिस्तान इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें भी उस रिपोर्ट ने कहा कि बीइंग वंस एलाई मींस बीइंग समवन एल्स एनिमी। तो आप जब किसी का सोल पार्ट हो जाते हैं तो आप दूसरे कंट्रीज को जो है यही अपना इमेज दिखाते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ जैसे एनिमी हो और दूसरे के जो है फ्रेंड हो।
आखिर में आप सर ये कंक्लूजन लिख लेते तो मुझे पता चल जाता. ओके, दैट्स नाइस. भूल गया हूँ मैं, सॉरी. इट्स ओके, इट्स ओके. असदुल्ला, बहुत जबरदस्त आउटलाइन आपकी. मैं असल में बीच में माइक ऑफ था, तो बीच में जब अब शुरू किया ना, तो बाकी जो ऑडियंस है मैं आपको बताना चाह रहा था. असदुल्ला बेसिकली एक टीचर हैं, तो इनकी आदत है मेरी तरह कि इन्होंने बात लंबी करनी है. इन्होंने पहले पढ़ना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, जिस वजह से चीज जो है वो लंबी हो जाती है. और इसी पे इनको मुझे बार बार जो है ना वो मना करना पड़ता है कि क्लास समझ के नहीं बात करनी, मीटिंग समझ के बात करनी है. बहरहाल आज आपने काफी शॉर्ट टाइम में जो है अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ली है, और वेरी नाइस. पॉइंट्स बहुत जबरदस्त है. मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी जो आखिर में आपने बताई कि नो बीइंग समवन्स एलाई मींस बीइंग समवन एल्सेस एनिमी. शायद यही सबसे बड़ी जो है वो लाइन है इसकी, जो कि इस जो फॉरेन पॉलिसी में जो लाइन टो करने वाली है वो यही लाइन है शायद. वेरी नाइस. ओके जी, एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशंस फॉर दिस? अच्छी आपकी रिसर्च अच्छी है, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव. लुबना कह रही हैं कॉम्प्रिहेंसिव, सिंपल एंड इजी आउटलाइन. आप बड़े अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं इसको. इमरान इज फाइनली देयर, वेल एक्सप्लेन्ड, गुड पॉइंट्स, बहुत अच्छी थी. जी, आई एम वेटिंग. अगर कोई कमेंट्स हैं तो जरा बताइएगा प्लीज, फिर आगे चले. वरना जी, इंफॉर्मेटिव भी है. थैंक यू वेरी मच असद, दिस वाज रियली नाइस. और स्पेशली आप जिस तरह की अपनी कंडीशन बता रहे हैं अपने इलाके की, फ्लड वगैरह की और सारा कुछ ही, नौशहर फरोज. तो उसके बावजूद आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी आउटलाइंस के ऊपर और अपनी तैयारी के ऊपर. और फिर ये कि एक जज्बा जो स्टूडेंट्स में मैंने देखा है, बाज लोगों में होता है, बाज लोगों में बिल्कुल नहीं है, वो ये है कि अपनी एफर्ट की हुई दूसरों के साथ इस तरीके से शेयर करनी. आपको पता है कि ये आउटलाइन अब सामने नजर आ रही है. अब यही चीजें जो है लोग अपने फैक्ट बुक में भी लिखेंगे. तो दूसरों को हेल्प करने की आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूटिव जो एफर्ट है, ये सारे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि ये रियली मेरी तरफ से अप्रिशिएबल है. क्योंकि बाज़ औक़ात मैं बाज़ लोगों से पूछता हूँ कभी आउटलाइन कि आप शेयर करना चाहेंगे, तो बाज़ लोग सिर्फ इसलिए ऐसे डिस्कशन फोरम में अपनी आउटलाइन नहीं अपलोड करते कि नहीं सर वो पॉइंट्स फिर चोरी हो जाते हैं और लोग जो है वो फिर उसको यूज करेंगे. दूसरी तरफ आप लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये कि अपनी आउटलाइन शेयर की है दूसरों के साथ, बल्कि अपनी सारी रिसर्च भी जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं. इसलिए आप सब लोग काबिल तारीफ हैं. ऐसे डिस्कशन फोरम के जितने भी प्रेजेंटर्स हैं, इन मीटिंग, इस मीटिंग में और पिछली मीटिंग्स में, ये बात मुझे आप लोगों की सबसे ज्यादा जो है वो अच्छी लगी है. नाइस. ओके, यस, वी अप्रिशिएट ऑल दिस. लास्ट वन टुडे इज द हुमैरा काजी. हुमैरा काजी नई शामिल हुई हैं उसके अंदर, और जो है वो आज अपनी जो है वो आउटलाइन पेश करेंगी. दानिश कह रहे हैं कि डजंट मैटर, हार्ड वर्क एंड हेल्पिंग अदर्स पेज ऑफ. नो वन कैन इमिटेट योर माइंड इन पेपर ऑफ कोर्स. आपकी तो रिसर्च है, आपके माइंड में ये ज्यादा पॉइंट्स हैं इसके बारे में, और जाहिर है दूसरे लोग सिर्फ इस रिसर्च को इतना ही सुन के सिर्फ उसको जो है वो यूज करने की कोशिश. गुड डीड्स एक्सपैंड बाय शेयरिंग, नो डाउट अबाउट दैट. ओके हुमैरा, लेट्स चेक साउंड. मैं जरा पॉज करूंगा रिकॉर्डिंग को. Okay, moving on to our next presenter, Humaira Kazi, or I will share the screen of her outline now in WhatsApp pictures. Ji Humaira Kazi, it's over to you now. Okay, sir. Assalamu alaikum. सर, जो टॉपिक आपने दिया था चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है उसमें तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि किस तरह से मतलब फॉरेन पॉलिसी क्या है और पाकिस्तान को किस तरह से मतलब उस रेस में शामिल होना चाहिए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसके अंदर. फिर उसके बाद सेकंड जो है नंबर 2 के ऊपर मैंने फेजेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मतलब क्रंच पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे किस तरह मतलब 1947 से लेकर अभी तक 2022 तक पाकिस्तान ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको किस तरह से अपडेट किया. और उसके बाद नंबर 3 पे हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, किस तरह से मतलब ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है या जिसको हम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं, ये क्या चीज है, मतलब किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं.
तो नंबर ए इमर्जिंग न्यू इकोनॉमिक पावर्स, मतलब अब पहले तो ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो सिर्फ मतलब कि ज्यादातर उसी की हेजमनी थी और वो सुपर पावर था। अब एशियन कंट्रीज के अंदर भी कुछ जो है वो पावर्स जो हैं वो इकोनॉमिक पावर स्पेशली डेवलप हो रही हैं, जैसे कि चाइना है और रशिया है। ये दोनों बड़ी एग्जांपल्स हैं वैसे हमारे पास। और बाकी भी इस तरह अब चाइना जो है उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर रहा है। इसी तरह और भी अब ईरान जो है उसके ऊपर भी काफी सारी सैंक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भी डेवलपमेंट की तरफ काफी ज्यादा उनका जो है वो रुझान है। बी पे हम बताएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ BRI फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। सर प्लीज नेक्स्ट पिक कर दें। जी BRI जो है वो बेसिकली एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का। जो है चाइना जो है वो जो यूरो एशियन कंट्रीज हैं और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां तक जाना चाहता है, मतलब उसको लैंड मतलब जमीनी रास्ते से वो जाना चाहता है, क्योंकि समुद्री रास्ता जो है उनको बहुत ज्यादा पड़ता है, उनको मतलब सफर उनका बहुत ज्यादा बनता है। तो उसकी वजह से वो चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्ट बात मिल जाए जिसके जरिए हम जो है अपनी इम्पोर्ट्स जो है कर सकें, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कर सकें। बेसिकली चाइना जो है वो अपने आप को इकोनॉमिक पावर बनाने की वजह से ही वो चाहता है कि पूरी दुनिया के साथ उसका इकोनॉमिक लिंक बने, कि वो अपनी जो चीजें हैं उनको पूरी दुनिया में जो है एक्सपोर्ट कर सके। उसके बाद सी है आउटराइट कन्फ्रंटेशन ऑफ US एंड रशिया। अभी रिसेंट हम लोगों ने देखा है कि जो है इंडिया के ऊपर जो इंडिया जो है बेसिकली वो इस वक्त न्यूट्रल एक मतलब कि वो न्यूट्रल अपने आप को कहलाता है, लेकिन वो असल में रशिया के ऊपर जो USA ने काफी ज्यादा सैंक्शंस रखी हुई हैं बहुत सारे कंट्रीज के साथ, कि आप लोग उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आप मतलब कि उनको धमकाना और ये इस तरह की बातें कि हम आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस तरह से। लेकिन इंडिया जो है उनमें सबसे ज्यादा उसने कन्फ्रंट किया है US और रशिया के साथ के नहीं, मैंने मतलब इंडिया ने अपनी ट्रेड जो है उसको जारी रखा है रशिया के साथ। अभी भी उनकी जो है ज्यादातर मतलब रशिया से, क्योंकि रशिया जो है ज्यादा ऑयल रिच है, तो पूरी दुनिया जो है तकरीबन उसकी डिपेंडेंसी है ज्यादातर कंट्रीज की ऑयल की रशिया के ऊपर। तो इस वजह से जो है इंडिया ने अपनी ट्रेड उसके साथ जो है कंटिन्यू रखी है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, अब बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली डील कर रहे हैं, मतलब वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे, जैसे कि जो है तुर्की और रशिया है। अब तुर्की और रशिया ने इन्वेस्टमेंट की है $100 बिलियन की। ये एर्दोगान ने जो है अभी रशियन प्रेसिडेंट से रिसेंट अभी अप्रैल के अंदर उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि हम ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरह जो अरब कंट्रीज हैं वो इसराइल को भी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। पहले इसराइल को नहीं एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब क्योंकि इसराइल जो है उसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि हम लोग जो है आप लोगों को सपोर्ट करेंगे मिलिटरीली भी, डिफेंस के हवाले से भी और इकोनॉमिकली भी, तो UAE ने जो है उनसे एक एग्रीमेंट भी साइन किया कि हम उनसे जो है डिफेंस के उसमें डिफेंस का एक एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद सर नेक्स्ट पिक प्लीज। उसके बाद है कि एक न्यू सर वो एक छोटी सी एडिंग मिस हो गया कि एक नया जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, नया इकोनॉमिक सिस्टम। अब पहले ये था कि US का क्योंकि ज्यादातर रोल था, तो US अपने मतलब उनका IMF भी उनके अंडर है और बहुत सारे और भी आलमी इदारे जो हैं वो उनके अंडर है। तो अब जो है एशियन कंट्रीज ने भी अपने, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसी तरह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक अलग से उन्होंने बैंक बनाया। तो जिसके अब ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बैंक है उसके तकरीबन ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड बैंक के 50% रिजर्व जो हैं वो इनके पास हैं। इसी तरह रिजेक्शन ऑफ प्रो US पॉलिसीज, अब बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो प्रो US पॉलिसीज को रिजेक्ट करते हैं कि हम US के साथ नहीं, जैसे लाइक शुरू में पाकिस्तान भी सीटो और सेंटो का किसी टाइम पे मेंबर रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने भी उसको कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले हमारे लिए आएगा। इसी तरह अब जो दुनिया है वो जियो स्ट्रेटेजिक से ज्यादा जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है, कि बेशक कंट्रीज के आपस में चाहे जितने मर्जी उनके राइवलरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रेड जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी 2 एग्जांपल्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, के एक G7 कंट्रीज ने B3W के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो बिल्कुल BRI की तरह ही है। जिस तरह BRI पूरे मतलब कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड को ऑलमोस्ट कैटर करेगा, इस तरह B3W उन्होंने स्टार्ट किया।
उसके बाद अब नंबर 4 पर हाउ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज इंटरलिंक्ड विद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब इसको किस तरह से ये इन्फ्लुएंस हो रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ। स्ट्रेंड रिलेशंस विद इंडिया, पाकिस्तान की इंडिया के साथ हमेशा से टेंशंस चलती रहती हैं, लेकिन रिसेंट अभी हमने देखा है कि जो ही पाकिस्तान के अंदर मतलब फ्लड आया है या और भी, तो पाकिस्तान ने दोबारा से ट्रेडिंग करने की कोशिश की है इंडिया के साथ, अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त नीड है। तो इसी तरह जिस तरह नीड होगी पाकिस्तान को जिस जिस कंट्री के साथ, उस तरह पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसीज के हिसाब से अमेंड करेगा। और इस पाकिस्तान जो है वो चाइना और यूएस की राइवलरी के अंदर पाकिस्तान ने कहा है कि मैं किसी का मतलब कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, ना यूएस को ना चाइना को। इसी तरह पाकिस्तान और चाइना जो है वो आयरन ब्रदर्स हैं। पाकिस्तान और चाइना के शुरू से, जब से चाइना ऑलमोस्ट 1949 से अभी तक चाइना काफी अच्छे रिलेशन हैं, और चाइना जो है वो सी पैक के जरिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए। ऑल्दो के इसमें उनका ज्यादा है, उन्हें ज्यादा फायदे मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी वो काफी ज्यादा डेवलपिंग काम कर रहे हैं। उसके बाद एडेप्टेशन ऑफ रशिया, अब रिसेंटली अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर किया था कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ भी अपनी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स करेगा। इसी तरह पाकिस्तान ने अभी अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसको रीडिफाइन किया है, किस लिहाज से स्पेशली अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से, कि पाकिस्तान ने काफी टाइम जो है ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स जो हैं वो पाकिस्तान जो है वॉर ऑन टेरर का हिस्सा रहा है, काफी ज्यादा पाकिस्तान के भी हालात खराब थे। स्टिल वी आर फेसिंग द टेररिज्म इश्यूज, बट पाकिस्तान ने अभी कहा है कि हम अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ऑन फ्रंट रखेंगे, बाकी चीजें जो हैं वो मतलब कि बाद में आएंगी। उसके बाद पाकिस्तान नेक्स्ट हमारी हेडिंग है हाउ पाकिस्तान, सर नेक्स्ट पिक प्लीज। जी आपके यही थे बस लास्ट वाले 4 के बाद आपने जो नेक्स्ट पिक्चर है वो ये वाली है, कोई पेज मिसिंग है दरमियान से? सर ये कंक्लूजन वाला ही पेज। जी अब पाकिस्तान अब वे फॉरवर्ड किया कि पाकिस्तान को ये जो न्यू वर्ल्ड अलाइनमेंट हो रही है इसको किस तरीके से कैटर फॉर करना चाहिए। तो पाकिस्तान को सबसे पहले, एक तो पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर पाकिस्तान का पहले भी काफी ज्यादा रोल रहा है, पाकिस्तान ने काफी ज्यादा एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट साइन करवाया। इसी तरह पाकिस्तान जो है उसको एक ये वे फॉरवर्ड है कि पाकिस्तान को बेशक BRI बन रहा है या सी पैक भी बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबली अगर पाकिस्तान अपने आप को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो पाकिस्तान को B3W का भी जरूर पार्ट बनना चाहिए। उसी और नंबर C है कि हमें अपना नेशनल जो सेल्फ इंटरेस्ट है, कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसको ऑन द फ्रंट रखना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें जितनी मर्जी, अभी हमने रिसेंट बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे इमरान खान सब बोलते रहते हैं कि रिजीम चेंज हुआ तो उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो चला गया, मतलब काफी ज्यादा हमें इश्यूज फेस करने पड़े। तो पाकिस्तान को अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले रखना चाहिए, पीस नेगोशिएशंस करनी चाहिए इंडिया के साथ कश्मीर इशू के ऊपर, ताकि जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा इस पूरे ये जो एरिया है या ये जो एशिया है इसके अंदर जो है पीस लाना मतलब नामुमकिन सी बात है। तो इस वजह से पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया के साथ थोड़ी सी मतलब, चाहे वो जिस पहले भी UN के प्लेटफॉर्म से और काफी ज्यादा और प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को करना चाहिए नेगोशिएट, ताकि जो है कश्मीर का इशू भी सॉल्व हो और वहां पे भी पीस लाया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ या वैसे भी जो कश्मीर के साथ पाकिस्तान का एक लिंक है, उसमें ये है कि कश्मीर के अंदर बहुत सारी हमारी ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जिनको हम, अगर वो हमारे साथ आ जाता है कश्मीर, तो हम उसके जरिए उसका फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद सर कंक्लूजन होगा, कि कंक्लूजन के अंदर फिर हम बता देंगे पूरे ऐसे का क्रक्स के ये। सर मेरी ये पहली आउटलाइन थी, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, बाकी लोगों की आउटलाइंस देख के तो मैं कोशिश करूंगी कि अगली दफा इम्प्रूवमेंट लाऊं। नहीं बहुत अच्छी एफर्ट है हुमैरा, मैं तो हैरान हो रहा हूँ बेटी कि तुमने चुपके चुपके जो है बड़ा जबरदस्त काम कर लिया है, और क्लासेस में मुझे महसूस भी नहीं हुआ तुम्हारी जो ब्रिलियंस है, और यहाँ पे आई एम लुकिंग एट हाईली डेवलप्ड आउटलाइन, और बड़ा जबरदस्त काम किया तुमने। थैंक यू सो सो मच। ऑल माय अप्रिसिएशन इज फॉर यू। और
जी स्टूडेंट्स, एनी कमेंट्स? बस पॉइंट्स इसके अंदर मुझे जो है मैं जरा जिक्र करना चाहूंगा। काफी सारे जो 2-3 लोगों ने जिक्र किया है, B3W का भी और BBB का भी, और उसके बाद बिल बेटर वर्ल्ड, और उसके बाद जो है वो BRI के साथ इसका कि उसका भी पार्ट होना चाहिए। अगर आप इन दोनों के मैप्स को गौर से देखें, BRI के और B3W के, तो आप देखेंगे कि ये ओवरलैपिंग बहुत कम है, और पूरी वर्ल्ड को केटर करने के लिए अगर आप B3W का मैप देखें जो प्रोजेक्टेड है, तो उसके अंदर बहुत कम जगहों पे ओवरलैपिंग है विद BRI। और ये एक पॉजिटिव चीज है कि ये इस तरीके से पूरी दुनिया को जो है वो कवर किया जा सकता है इस तरीके से। सो यहाँ पे अब बात वही कि जी उसकी जहां तक सेल्फ एक इंटरेस्ट आएगी, तो तमाम दुनिया की जो है वो इंटरेस्ट जियो इकोनॉमिक होती जा रही हैं। तो जियो इकोनॉमिक में फिर ये चाहे 2 इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट हों, 3 हों, 4 हों, लेकिन nations would like to join all of them so that they could have access to and from all of the world. एक पॉइंट ये मैंने ऐड करना था, और बस दैट्स ऑल। ये चूंकि यहाँ पे इन लोगों ने कनेक्ट नहीं था किया, इसलिए मैं चाह रहा था कि ये पॉइंट जरा इसको जरा जिक्र कर दें। जी हुमैरा, आपकी एफर्ट बहुत अच्छी है, बाकी लोग भी आपकी जो है वो काफी तारीफ कर रहे हैं। और outright confrontation with USA and Russia, independence foreign policy, थोड़ा सा जरा मैं कहूंगा कि जो वे फॉरवर्ड है उसमें जरा थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक होना होता है। पाकिस्तान शुड बी पार्ट ऑफ B3, मस्ट प्रोजेक्ट इट्स सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, यहाँ मैंने एक चीज ऐड करनी थी। आपने जिक्र किया कि रिजीम चेंज का और सारा, मैंने पिछले दिनों एक टॉपिक बनाया ऐसे का, लेकिन फिर मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर गया। टॉपिक ये था कि at what price या at what cost can national integrity be compromised? समझ आती है टॉपिक की? At what cost can national integrity be compromised? और इसका जवाब, लेकिन ये ज्यादा ब्लंट था, ज्यादा बोल्ड था, और इसका जवाब ये बनता है कि at no cost can national integrity be compromised। तो यहाँ पे इसी चीज को आपने वो किया है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। कंट्रीज अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते भी हैं। और मेरी ये शायद इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो मेरे जो सितंबर के मॉक्स हैं उसमें ये टॉपिक आया भी हुआ है, लेकिन इस वक्त मुझे वो उसका टॉपिक जरा इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन हम नेक्स्ट करेंगे। फिलहाल हम इस मीटिंग को खत्म कर लें, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो साथ ही जो है वो कर देता हूं। जी हुमैरा, वेल डन। ओके, सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज मीटिंग। आई एम थैंकफुल टू ऑल द 3 प्रेजेंटर्स। बड़ी मेहनत की है आपने, नजर आ रहा है। अली रजा, शहजादी तालिब, शहसवार जफर, असदुल्ला, हुमैरा काजी। हालांकि हुमैरा काजी जो है वो नई एंट्री है, लेकिन उसके बावजूद उसने काम बहुत जबरदस्त किया है। एक चीज मैंने जरूर मेंशन करनी थी कि ये जो आउटलाइंस हैं हमारे पास, जो ऐसे डिस्कशन फोरम का जो प्रेजेंटर्स का जो ग्रुप है, उसमें तकरीबन 14-15 लोग हैं, और बाकी भी आउटलाइंस आई होती हैं। ये हमने अब मेथड ये रखा हुआ है कि 5 बेस्ट हमने प्रेजेंट करनी होती हैं। सो आज आपने जो आउटलाइंस देखी थी, ये उनमें से बेस्ट वाली थी। और भी लोगों ने अपनी आउटलाइंस भेजी हुई हैं, मेहनत उन्होंने भी काफी की है, लेकिन बहरहाल टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमने जो 5 बेस्ट जो थी वो प्रेजेंट करनी होती थी। यकीनन इससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है कि वो और ज्यादा मेहनत करें, और उनकी आउटलाइन जो हो वो भी सिलेक्ट हो यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए। और सो अब आपको पूरी कोशिश की समझ आ गई होगी कि ऐसे डिस्कशन फोरम काम किस तरह कर रहा है, कि सारे लोग ये एफर्ट कर रहे हैं, और उसमें से जो बेस्ट हैं उनको हम प्रेजेंट इसके अंदर मीटिंग के अंदर आपके सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोग आज जो दूसरा ग्रुप, इस वक्त एक्चुअली 2 ग्रुप्स हैं, एक ऐसे डिस्कशन फोरम के प्रेजेंटर्स हैं और एक EDF अटेंडीज हैं। जो लोग रेगुलरली इसकी मीटिंग को अटेंड करते हैं, उनको अटेंडीज का एक जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन करवा लिया है, ताकि एक लिंक भेजें तो उनको सारी चीजें जो है वो फौरन मिल जाए। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, तो उनको अटेंडीज के ग्रुप में या प्रेजेंटर्स के ग्रुप में शामिल किया जा सकता है।
Thank you very much. So I would like to end this recording here. Danish Ali कह रहे हैं कि keeping in view all the outlined Shahswar's outline stands out, covering the diplomatic fronts of Pakistan and determinants of our foreign policy, so much to learn. जी इसी तरीके से मुझे तो सभी पांचों की पांचों आउटलाइंस के अंदर नए लर्निंग पॉइंट्स जो थे वो डेफिनेटली मिले इसके अंदर से. और अब आप देख लें कि इस एक सिंगल मीटिंग अटेंड करने से आपका चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान कि पूरा जो पर्सपेक्टिव है तकरीबन वो आपके सामने एक ही मीटिंग के अंदर जो है वो सारे का सारा आ गया. दिस इज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग. मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अभी अनाउंस करना चाहूंगा ताकि सब लोगों को पता हो इसके बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है राइजिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एज चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जरा नोट कर लें अपने पास. राइजिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इसको मैं लिमिट नहीं कर रहा वर्ल्ड पे या पाकिस्तान पे. राइजिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एज चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसके ऊपर नेक्स्ट जो है वो हम मीटिंग करेंगे और इसके ऊपर नेक्स्ट लोग जो है वो तैयारी करेंगे एज चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू स्विच ऑफ नाउ. थैंक यू. ओके, खुदा हाफिज.